से स्टूडियो की नेस्ट लेके आएंगी, तो हमें देखते हैं कि नेस्ट मिलता है उस दुकान पे। ठीक है, तो मिल जाता है। लो चिड़िया देखो, बाहर से देख लिया। तो लेके आ जाओ ना मम्मा। The very next day, we were bidding adieu to our co-worker and staff member Ramadhar Bhaiya, and that day it was a very nice day because it was his last day of service. He was getting retired and he was accompanied by his whole family. Here his wife is offering the garland, and now we can see that respected principal ma'am and our senior most PGT Thakur sir is offering him shawl. So these are the few moments that apart from our busy schedule at school, we all get together to celebrate the happiness among all, and of course with the family members of the retiring person. So these are the small things that I love and rejoice being a part of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This is a very nice platform that we get together with everyone from different states so that we can share the culture, language and the diversity of everyone, and yet we are united. ये कब खाए थे? ये क्या खा रही हो? इडली। Here, the students of primary wing were presenting a special program regarding the plantation week, and they are showing the value of trees as the fruitfulness of trees and plants that we rejoice. So, it is an appeal and a request to everyone to plant at least 2 to 3 saplings a year in regards to your birthdays and your anniversaries, so that we can have a lot more plants and trees, and that results into a greener society and more of oxygen, less pollution. So being a science teacher, it's a request to everyone who are watching and who are my subscribers to please help our society to grow greener and help our earth to grow greener. कितना पेड़ को पेड़ सबको बहुत पसंद होता है। एक पेड़ जो लोग से खाता है तो सबको वो दूर है। चांद वाली जिंदगी है, पेड़ कोई भी पूरे नहीं होते। जो भी करती है माँ काली, इंसानों को बचाती है और रावणों को मारती है। Here we are enjoying the kabaddi competition in the between the houses that we are having at our school. और हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हाउस वाइज स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है so that they have the team spirit and they can participate in various co-curricular activities, sports activities and the yoga and various fitness activities. तो यहाँ पर वही एक्टिविटी हो रही है। स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया कबड्डी कॉम्पिटिशन में। ये जो मैच हम देख रहे हैं ये बॉयज़ मैच है, बॉयज़ वर्सेस बॉयज़ मैच हो रहा है। आपको अपकमिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्ल्स का भी इसमें मैच हुआ था। तो ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि रीजनल लेवल पर कबड्डी के लिए हमारे स्टूडेंट्स को जाना था। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस यहाँ पर स्कूल में ही कंपटीशन होते हैं हाउस वाइज, देन यहाँ से जो बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो टीम विनर होती है, बेस्ट स्टूडेंट्स अमंग दैट विनर टीम गेट्स अ चांस टू गो इनटू द रीजनल लेवल। तो हमारे स्टूडेंट्स रीजनल लेवल पर भी गए थे
Here our respected principal ma'am is meeting and wishing best to the girls team of Kabaddi of our school, accompanied by many of our teachers here, and rest of the staff was sitting and enjoying the कबड्डी गेम. एंड ये मौका बहुत सालों बाद, मीन्स 2 years के बाद ये मौका आया है कि पूरा स्कूल रीयूनाइट हुआ और एक जगह बैठ के हम लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं. हमारे यहाँ यही द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि सब लोग साथ में रहते हैं, वी गेट यूनाइटेड, और हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं, मौके होते हैं कि हम लोग साथ में रहें और चीज़ों को एंजॉय करें, एक लेवल आगे बढ़ें. तो यही सिखाता है केंद्रीय विद्यालय द सेंट्रल संगठन कि हम साथ रहें और आगे बढ़ते रहें. Here I am showing you a rainy day from my eyes and my camera. This is my school's ground, just looking so nice in the rainy weather. And as rain थी तो morning assembly possible नहीं थी वहाँ ground में. So here my class students are attending the morning assembly. School में एक ही जगह से on the mics and with the help of electronic media morning assembly conduct कराई जा रही है. So these are my students. Hello. Hello. So Naira was having light moments with us, and here is Naira's dad feeding her. उसको खिलाना बहुत मुश्किल है, so ये बहुत हार्ड टास्क हो रहा है यहाँ पर. द वेरी नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के वेरियस स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7th 6th 5th एंड 12th के स्टूडेंट्स. आई वाज आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ स्किट, और यहाँ पर स्टूडेंट्स स्किट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें कि वो बता रहे हैं कि प्लांटेशन एंड प्लांट्स ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. प्लास्टिक्स जो यहाँ पर वेस्ट हम लोग कचड़े में डालते हैं, उसको कुछ कैटल्स खा लेते हैं, वो सारी चीज़ें. और यहाँ पर मैं हूँ बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए. तो स्कूल में ये हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी हम लोग ध्यान देते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. यू कैन ऑल्सो वॉच फ्रॉम दीज वीडियोज़. कुछ आइडियाज़ सब लोग ले सकते हैं कि इन वीडियोज़ से कितनी हेल्प होती है. और नेचर में हम लोग कुछ चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं अपने अंदर कि हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए. प्लास्टिक का यूज़ एक्चुअली हम लोग टोटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक की जगह पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों के बैग यूज़ कर सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन एंड ये एक मैसेज था जो स्टूडेंट्स ने अपने स्किट के माध्यम से हम लोगों को सबको देने की कोशिश की थी. सो दिस इज़ द हार्ड वर्क ऑफ माई स्टूडेंट्स. यू कैन वॉच. और प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग करके हम फेंक देते हैं. हमें इसका हल निकालना चाहिए. हाँ, क्यों ना हम इस पर एक प्रोजेक्ट बनाएं, शायद वो हम सबकी मदद कर पाए. हाँ जरूर. वो हम पूरी क्लास को दिखाएंगे. हाँ चलो. ये तीनों एक रिपोर्ट जारी करते हैं और अपनी पूरी कक्षा को समझाते हैं, जैसे कि पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए हमने कुछ सोचा है. अब यही देख लो, दुनिया में एक दिन में 500 लाख से भी ज्यादा स्टॉक का इस्तेमाल होता है, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है. इसका हमने हल निकाला है. इसमें आप सबका साथ चाहिए. हमें बस ध्यान रखते हुए भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. धन्यवाद. जब बच्चों ने इनकी बात सुनी
तो कुछ बच्चों ने कागज़ के बैग बनाने भी शुरू कर दिए और कुछ बच्चों ने स्कूल में पौधे भी लगाए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने स्कूल कैंटीन के पास एक छोटी सी दुकान खोल दी जिसमें वह कागज़ के बैग बेचा करते थे। और इस तरह से स्कूल में प्लास्टिक की चीज़ें कम होने लगी। फेसबुक के जरिए कुछ पुराने कपड़े दान में मिलने लगे जिनसे कपड़ों के कैरी बैग्स बनने लगे। हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है और आपको सीनियर पब्लिक स्कूल अब प्लास्टिक मुक्त स्कूल बन गया है। ये तीनों ने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को जागरूक कर प्लास्टिक मुक्त बनाया है और पर्यावरण की रक्षा की है। और आप हमेशा याद रखें कि बड़ी सोच के लिए छोटी से शुरुआत करनी जरूरी होती है और वक्त के साथ साथ दुनिया भी साथ देने लगती है। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि इन बच्चों की तरह आप भी प्लास्टिक का दुरुपयोग ना करें और पर्यावरण की रक्षा करें। जितने हो सके उतने पौधे लगाएं। और मैं अंत में चाहूँगी कि आप सभी मेरे साथ एक स्लोगन दोहराएं, कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं, आओ धरती को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। कल ठाकुर सर ने भी हमें बताया कि ये वीक सप्ताह जो चल रहा है वन महोत्सव हम मना रहे हैं और इसी के अंतर्गत आप सबके समक्ष कक्षा 12वीं अ और 7th ए के स्टूडेंट्स ने नाट्य प्रस्तुत किया जो कि प्लास्टिक रोको और प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट में जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि घरों में भी हम लोग प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। और छोटे बच्चों का थोड़ा सा प्रयत्न था, थोड़ी सी कमी हो गई थी, उसके लिए आप लोग बच्चे दोबारा से अच्छा प्रयत्न कर सकेंगे, प्रोत्साहन हम लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू मैम। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग बाहर आए थे फॉर आउटिंग और नायरा को एक्चुअली बहुत मन था टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज एंड पिज़्ज़ा, तो बस मैं उसको यहाँ लेकर आई थी। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस इन माई सिटी, दैट्स नेम इज़ पिज़्ज़ा पैराडाइज। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा मिलता है, मतलब सब्सटीट्यूट है बहुत ही जो ब्रांडेड पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, तो उसका जो सब्सटीट्यूट है मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है कि उसके लेवल का है, मतलब यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है चीज़, दैट्स व्हाट आई एम सेटिस्फाइड। तो ज़ोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं हम इनके पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा पैराडाइज वाले शॉप के पिज़्ज़ा को। बट मैं आई थी नायरा के साथ तो थोड़ा आउटिंग हो जा, मुझे कुछ काम भी था मार्केट में, तो यहाँ पर नायरा इज़ एन्जॉइंग हर पिज़्ज़ा पैराडाइज जूस। और जैसा कि हमेशा ही आप लोगों ने वीडियोस में देखा है, उसको कुछ और घर से चाहिए होता है बट उसको मार्केट में कुछ और मिल जाता है, तो बस वो एंजॉय कर रही है। शी इज़ शोइंग द मेन्यू कार्ड ऑफ द शॉप और बस शी इज़ एंजॉइंग। मैं भी अपने नायरा के साथ एंजॉय कर रही हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं हम दोनों एक साथ। ये देखो नीचे। तो दिस इज़ अस। और फिर मेरा बर्थडे होगा पिछली बार। हमें परमात्मा देना, दया करना। चश्मा कौन सा लगा? ये चश्मा अच्छा लगेगा नहीं तो ये चश्मा लगाते हैं अच्छा लगेगा। अब लग रहा है नेताजी एकदम स्मार्ट।
ये क्या है भाई, तुम्हारे नेताजी की मूर्ति सीमेंट की है और चश्मा। अरे वो कैप्टन, अरे वो कैप्टन बना लेता है। ये कैप्टन कौन है? आर्मी का रिटायर्ड जनरल बन उनका लंगड़ा कैप्टन आर्मी में जाएगा। अच्छा, वो कैप्टन, इसका असली नाम कुछ और है? अरे तुम्हें क्या करना, जाओ ना यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाओ। Come at the center, no? Center na. चश्मा तो अच्छा लग रहा है। क्या भैया, यहाँ पर आप बेच रहे हो चश्मा? हाँ, चश्मा हम ही बेचना है बेटी। तो क्या ये चश्मा मुझे बेच सकते हो? हाँ, दे देंगे। कितने का है वैसे ये? 50 रुपए का है। 50 रुपए? भैया मैं 14 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। अरे बेटा, इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी में 50 कम होता है बेटा। अच्छा, हाँ तो 50 रुपए में ही दे लो। ये लो पैसे। समझ लो। लो चश्मा। हाँ, लेता हूँ। क्या है, छोटी बच्ची हो क्या, देख के ही तो सकती हो। चश्मा अच्छा लग रहा है। क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा क्यों बदला हुआ है? कौन बदलता है? बेटा आप लोग सेंटर में आ जाओ। थोड़ा यहाँ पे आओ आदेश। यहीं से बोलो, कोर्टलेस में दिया सकते। सेंटर में आ जाओ बस। आज ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा क्यों बदला हुआ है? ये कौन बदलता है? बता तो दिया, कैप्टन बदलता है, और कौन बदलेगा? वो लंगड़ा ही बदलता है। अच्छा, वही बदलता है। हाँ, अब जाओ, फोकट में टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसके। अब ये चश्मा किसने लगाया? क्या होता है कैप्टन अब नहीं रहा, बहुत दुखी खबर है। क्या होता है, बच्चों ने लगाया है, सरकंडे का चश्मा है, बहुत सही आदमी था वो। जरूरी नहीं है कि हमें देश की सेवा करने के लिए फौज में होना या फिर कोई सेना में होना ही जरूरी है। हम अपने देश की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैप्टन जो एक बूढ़ा आदमी था, उसने अपनी उसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, पर वो अपनी चश्मे की दुकान लगाता था, तब भी वो आकर रोज चश्मा चेंज करता था। वो उसके दिल में देश के लिए प्रेम भी था और नेताजी के लिए अपना सम्मान ही था। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें जिस रूप में हो या फिर जैसे भी हो, कुछ भी करते रहना चाहिए। धन्यवाद।